Hello everyone. So today we will see next topic, logarithmic function. So here we have already discussed till exercise 1.2. Now today we'll start 1.3. Before that we will see first rules of logarithms. There are 5-6 rules. Logarithms rule: log a into b, when into is there, you have to do addition log a plus log b. Next, when divide, log a divided by b is equals to log a minus log b. When divide you have to do minus, and when multiply you have to do plus. Then log x to the power n means whenever any angle power any power n or any number, that power will come front, so n log x. And if log root x is there, we can write root as a power half, then that half we can come front, so half into log x. Same if log cube root x, it is the cube root, it is the square root, so cube root we can write power as a 1 by 3, and that 1 by 3 will come front, so 1 by 3 into log x. So these are the logarithms rule. This will help in solving next means 1.3 exercise. So here first of all basic if I will tell, means here we have to differentiate always with respect to x. So suppose if derivative of y, I will find the derivative of y. So we know standard formula for log x is 1 by x. So similarly 1 by y, but here we have to differentiate with respect to x. So again y derivative you have to write dy by dx. Okay, if suppose you have to find derivative of log u, okay, log u you have to find, then same 1 by u first, then u derivative will come du by dx. So these are the basics. Whenever in your question log u or log y, you have to write that derivative 1 by y into dy by dx, and log u derivative 1 by u into du by dx. Okay, and here if suppose into is there, then you have to first of all you have to do addition, means separate log, and if divide you have to do minus, any power it can come front. So these all basic we will use in exercise 1.3. so your first question, differentiate the following with respect to x. Suppose now here in your question only this question will be given, so you have to write starting from let y, always you write start from y is equals to your question and give as equation number 1, because this you have to we will use this equation number 1 at the last. Then next always steps for this logarithmic differentiation, you have to write let y is equals to your question. Next you have to write taking log on both side, right side and left side you have to take log. Then here we will use log a by b, logarithm rule, log a by b. In divide we have to do minus, so log a numerator means a minus log b means this denominator, and in denominator here see into is there. First here two rule at a time we are using. First log a by b means minus will come, and in divide 2 in into, so into we have to do addition log a plus log b. Then if this power will come front, log x to the power n means n log x. According to logarithmic rule power will come front. Here also power will come front, but this minus will multiply, again this minus plus minus, and this power will come front. Now here we have to differentiate. Till now we did not differentiate, so now we will differentiate with respect to x. Then log y derivative will come 1 by y, again y derivative dy by dx. 2 as it is, again log standard derivative of log x is 1 by x. So similarly log x plus 1 derivative is 1 by x plus 1. Again x plus 1 derivative we have to write, but x value is x derivative will come 1, so no need to write. Then minus 3 into again log x plus 2 derivative will come 1 by x plus 2 minus 4 into again this derivative will come 1 by x plus 3. सो ओके, देन जो 2 है 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 3 विल कम अप, 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3. देन जो भी ये डिवाइड में y होता है उसको राइट साइड में हमेशा लाना रहता है. ओके, एंड दिस विल एज इट इज़ इन क्लोज ब्रैकेट
Then at the last always you have to replace your y. If you will not replace, your 1 marks will cancel. So here y you have to write from equation number 1, means जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो इक्वेशन नंबर 1 और वो y की वैल्यू होगी. So y की जगह ये पूरा लिखना रहेगा. So that we will write here and this close bracket as it is. So this is your last answer. Here we can write from equation number 1 we are writing y value here. So you can take the screenshot of this answer. Now we'll see next question number 3. Now question number 3 is let y is equals to this. So always question you write as equation number 1, then taking log on both side. Then दोनों तरफ log लेने के बाद अब यहाँ इंटू है. सी इंटू में 2 टर्म्स भी होती हैं, 2 या 3 फंक्शंस भी हो सकते हैं. तो तीनों को अलग अलग लॉग लगाना है. इंटू में कभी भी एडिशन होता है. सो देन पावर विल कम फ्रेंड्स, सभी का पावर आगे आ जाएगा जो भी पावर है. अब यहाँ देखो 2 के पावर पे एक्स स्क्वायर, सो वो जो 2 है आगे आएगा और 2 के पावर पे एक्स एज इट इज़. देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. लॉग बाय डेरिवेटिव विल कम 1 बाय वाई, अगेन वाई डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. 3/2 एज इट इज़. लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3. अगेन जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव इंटू में लेना है. ओके क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. सो नो नीड टू राइट 0, ओनली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3. अगेन लॉग साइन 2x का होता है 1 बाय साइन 2x. फिर से साइन 2x का डेरिवेटिव होगा कॉस 2x और 2x एंगल का भी डेरिवेटिव निकालना है. 2x का डेरिवेटिव इंटू 2, देन प्लस 2 इंटू लॉग 2 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय 2 टू द पावर एक्स. फिर से 2 टू द पावर एक्स को लगाएंगे हम फॉर्मूला a टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव a टू द पावर एक्स इंटू लॉग a. सो सेम 2 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 2. देन 2 टू द पावर एक्स दोनों कैंसल और यहाँ पे ये वाला 2 और ये 2 दोनों कैंसल. सो व्हाट विल रिमेन 3 इंटू एक्स. सो 3x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड दिस 3 से ये और ये पूरी टर्म इंटू में. सो 3 2 ज़ा 6. ये cos 2x ऊपर आएगा और ये डिवाइड में sin 2x नीचे आएगा. देन यहाँ पे 2 log 2. अगेन सिमिलरली y डिवाइड में है, ये साइड आएगा इंटू में और ये पूरा आएगा क्लोज ब्रैकेट. अब यहाँ पे भी देखिए cos बाय साइन दोनों का एंगल सेम रहा तो cos बाय साइन क्या होता है cot. 2x है इसलिए 2x. देन y रिप्लेस करना है. y मीन्स अवर क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 जो भी क्वेश्चन है वो हमारा y है. तो y की जगह हम ये पूरा लिखेंगे, रिप्लेस करना है y. सो दिस इज़ अवर लास्ट आंसर. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. सी यहाँ पे सभी डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बड़े क्वेश्चन है, पूरा बेस है लॉगरिथम्स पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पे सेम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, टेकिंग लॉग ऑफ. सिर्फ स्टेप्स याद रखना, इजी है, उतना हार्ड भी नहीं है. फर्स्ट स्टेप जो भी क्वेश्चन उसको लेट y से डिनोट करना है, इक्वेशन नंबर 1 देना है. नेक्स्ट स्टेप दोनों को टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है. देन लॉगरिथम के रूल, डिवाइड है तो माइनस लगाना है, इंटू है तो प्लस लगाना है. नाउ हियर डिवाइड, सो डिवाइड में माइनस लॉग ये न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर, सो लॉग ए माइनस लॉग बी. देन अभी यहाँ इंटू है दोनों में इंटू मीन्स दोनों को प्लस का रूल लगेगा, लॉग ए प्लस लॉग बी. तो ये वाला एज इट इज़. देन सभी का पावर फ्रंट आएगा, जो भी पावर है तीनों का. अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 3x है तो साइन स्क्वायर को हम साइन 3x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. दोनों का मीनिंग सेम होता है. ओके फंक्शन का स्क्वायर या पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, दोनों का मीनिंग सेम होता है. देन 2 विल कम फ्रंट. नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. लॉग y डेरिवेटिव विल कम 1 बाय y, अगेन y डेरिवेटिव विल कम dy बाय dx. फाई एज इट इज लॉग x स्टैंडर्ड डेरिवेटिव इज 1 बाय x प्लस 3 इंटू लॉग tan 4x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय tan 4x. अगेन tan का डेरिवेटिव आपको पता है स्टैंडर्ड सेक्स स्क्वायर 4x. फिर से 4x का एंगल का डेरिवेटिव इंटू 4. देन माइनस 2 इंटू लॉग साइन 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाय साइन 3x. फिर से साइन 3x का डेरिवेटिव आएगा इंटू कॉस 3x और 3x का डेरिवेटिव इंटू 3. अब यहाँ पे कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, सो 5 इंटू 1 5 बाय एक्स. अब यहाँ पे ये पूरा मल्टीप्लाई में, सो 3 4 ज़ा 12 सेक्स स्क्वायर 4x डिवाइड बाय tan 4x माइनस
3×2 = 6 cos 3x बाय साइन 3x। सो यहाँ तक। अभी इसका देखो ये जो बीच की टर्म है इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे रफ में, फिर उसका आंसर यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट, बिकॉज दोनों का एंगल सेम है। सी इफ एंगल सेम है तभी हम इसको कॉट लिख सकते हैं, अगर इसका एंगल डिफरेंट है दोनों का तो कॉट नहीं लिख सकते। सो नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट हियर 6 cot 3x, और ये एज इट इज। नाउ सेंटर का सी वी विल सॉल्व इन रफ। सो रफ वर्क में जो हमारा सेंटर की टर्म थी हम उसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। सेक्स स्क्वायर वी नो दैट 1/cos स्क्वायर, एंड tan वी कैन राइट sin by cos, देन cos cos कैंसल, दोनों का एंगल सेम है 4x, सो वी कैन कैंसल इट। देन यहाँ पे एक cos बचेगा, यहाँ पे sin बचेगा, तो जो cos है वो डिवाइड में आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन अभी यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड, यहाँ हम 2 एडजस्ट कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी। देन डिवाइड वाला हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है क्या है, sin 2x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, sin 2x फॉर्मूला इज 2 sin x इंटू cos x। ओके, सो सिमिलरली अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं sin 8x का, सो क्या आ जाएगा 2 sin 4x इंटू cos 4x। ओके, सो ये हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है sin 2x के फॉर्मूले से हम sin 8x का फॉर्मूला बनाएंगे। सो इसके जगह हम लिख सकते हैं sin 8x। सो दिस इज़ नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर sin 8x। देन ये 2 इधर लिखेंगे और 1/sin क्या होता है cosec, सो क्या आ जाएगा 2 cosec 8x। सो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट 2 cosec 8x। सो हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे देखो इधर जो इंटू डिवाइड में वाई है इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और फर्स्ट और लास्ट की टर्म लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा cot 3x, मतलब 6 cot 3x, और बीच में हमने अभी जो सॉल्व किया है। सो वाई कैन दिस साइड मल्टीप्लाई 12 एज इट इज़ था, और जो बीच की टर्म है यहाँ पे 2 cosec 8x लास्ट में ये, देन 12 2 = 24, अगेन लास्ट में वाई रिप्लेस कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा क्वेश्चन था। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, सो वाई रिप्लेस किया है, सो हियर अवर दिस आंसर ओवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, सेम इक्वेशन नंबर 1 टेकिंग log ऑन बोथ साइड, b डॉट s मीन्स बोथ साइड, ओके शॉर्टकट है। देन log दोनों तरफ लेने के बाद जो tan इनवर्स x है वो पावर है वो आगे आ जाएगा। देन log y का डेरिवेटिव होता है 1/y, y का डेरिवेटिव अगेन dy/dx। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, जब भी दो फंक्शन है, ये इन्वर्स फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन, जब भी दो फंक्शन आते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। ओके, सो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हमने लिखा है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, देन tan इनवर्स x एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यहाँ पे लिखे 1/x, देन log x एज इट इज़, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। सो ये लिखे प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद, देन जो y था वो उस साइड डिवाइड था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, अगेन y रिप्लेस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। y क्या है, x⁻ tan इनवर्स x, सो यहाँ आ जाएगा x⁻ tan इनवर्स x, और ये जो है इसके डिवाइड में लिख लेंगे, एंड ये log x इंटू 1 ऊपर जाएगा log x डिवाइड बाय 1 + x²। सो दिस इज अवर आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6। देन क्वेश्चन नंबर 8, लेट y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x⁻x। अब यहाँ पे देखो x के पावर पे x है, सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखो क्योंकि सिंगल है इसको हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से, बोथ साइड नहीं करेंगे पहले क्योंकि यहाँ कुछ पावर नहीं है, नेक्स्ट आगे हम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x की जगह पे x⁻x, अगेन जो एंगल अब यहाँ पे कंपोजिट है, अगर x रहता तो हम डबल डेरिवेटिव नहीं निकालते थे, बट x⁻x है इसलिए उसका भी डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। सो दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंसिडर लेट u इज इक्वल्स टू x⁻x। अब जो हमको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है ना,
सो इसको हम सॉल्व करेंगे सेपरेट से। u इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स कंसिडर करें। अब यहाँ पे हमें पावर दिख रहा है, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सी लॉगरिथम क्यों हम यूज़ करते हैं, जब भी क्वेश्चन में बड़ा टर्म है, कुछ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पावर, डिवाइड, सो हम उसमें लॉगरिथम रूल लगा के उसको ईजी वे में सॉल्व कर सकें। देन लॉग लेके दोनों साइड, ये जो पावर है आगे आ जाएगा, एक्स आगे आएगा, एक्स लॉग एक्स। देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग यू डेरिवेटिव 1/u, अगेन यू का डेरिवेटिव du/dx। देन इसमें भी दो फंक्शन, ये अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है। सो फर्स्ट फंक्शन बाय प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। देन बोथ का एक एक्स कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे log x इंटू 1 log x बचेगा। नाउ हियर u इज हियर डिवाइड, दिस साइड विल कम मल्टीप्लाई। फिर u को देखो हमारे इक्वेशन नंबर 2 से u हमें रिप्लेस करना है x टू द पावर x। सो ये साइड आ गया हमारा u इंटू में, देन u की जगह x टू द पावर x, यहाँ पे भी u की जगह x टू द पावर x। सो हम ये जो इक्वेशन नंबर 3 है पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, सी d/dx ऑफ x टू द पावर x, यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है, ये बाकी का एज इट इज़ रहेगा। So therefore equation number 1 becomes dy/dx is equals to cos x to the power x into, ये जो आंसर आया x to the power x into 1 plus log x। so यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। नाउ विल सी टूवर्ड्स सेकेंड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू, सी यहाँ पे हमें हर क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है। सो जो भी क्वेश्चन उसको लेट वाई से डिफ्रेंशिएट, वाई से डिनोट करेंगे। देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव होता है dy/dx। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत सारी टर्म है तो यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं लेना है। सो यहाँ पे हम पहले सभी को सेपरेट डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके आगे dy/dx सभी को सेपरेट डिफ्रेंशिएट किए। देन जिसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकल रहा है उसको लिखेंगे और जिसका डायरेक्ट नहीं निकलता है उसको हम सॉल्व करेंगे सेपरेट। सो dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x टू द पावर n लगाएंगे। हमें पता है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, बस यहाँ n के जगह हमारा e है, सो ई विल कम फ्रॉम x टू द पावर e माइनस 1, मीन्स वी हैव यूज हियर दिस फॉर्मूला। देन x टू द पावर x, जस्ट अभी हमने सॉल्व किया था डेरिवेटिव d/dx ऑफ x टू द पावर x, वहाँ वैसे सॉल्व करेंगे। और e टू द पावर x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, और e टू द पावर e, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों भी कांस्टेंट है, e और e, अगर कुछ x नहीं है मतलब वो कांस्टेंट टर्म है। सो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ये e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, और ये हम सेपरेट सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमने ये x टू द पावर n लगाया। सो दिस इज एज इक्वेशन नंबर 1। Now this we will find separately. So x to the power x we will take as a u. Okay, कभी भी लेट u लेंगे उसको इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सेम प्रीवियस मेथड, log u इज इक्वल्स टू log x टू द पावर x, फिर वो x आगे आएगा। देन log u का डेरिवेटिव 1/u इंटू du/dx, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ log x इंटू 1 log x। देन u इज हियर डिवाइड, दिस साइड विल कम मल्टीप्लाई। अगेन u यू हैव टू रिप्लेस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, u हमारा है x टू द पावर x, तो यहाँ पे हो गया x टू द पावर x। सो ये हम यहाँ लिखे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे। सो अब पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारा, ये हम वैल्यू इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, so our equation number 1 will becomes dy/dx is equals to ये, और यहाँ पे ये वाला आंसर हम इक्वेशन 3 का यहाँ पुट किए और e टू द पावर x एज इट इज़, मतलब ये जो था हमारा, और ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं। सो ये हमारा लास्ट आंसर है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सी, सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ 2 टर्म है और यहाँ पे देखो 3 बार पावर है, x टू द पावर x टू द पावर x, और यहाँ पे e टू द पावर x टू द पावर x। सो सबसे पहले यहाँ पे ये डायरेक्ट इनके डेरिवेटिव्स डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसे डिफरेंट लेटर से डिनोट करना है, u v, अगर थर्ड टर्म होती है तो w से। सो फर्स्ट कंसिडर ये इसको u और इसको v कंसिडर करेंगे।
देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स प्लस वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। कोई सपोज इट्स इक्वेशन नंबर 1। नाउ विल कंसीडर, अब एक एक सॉल्व करेंगे। ओके, सो कंसीडर करेंगे u को x टू द पावर x, ये कंसीडर किया है सब। दिस एज इक्वेशन नंबर 2। देन अब यहाँ पे पावर है, सी जब भी पावर होता है तो जब भी दो टर्म्स होती है ना, कि इसको कंसीडर करना है एज एक टर्म। ओके, इसको एज एक टर्म करना है, एक पावर कंसीडर करना है। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन लॉग का जो ये पावर है ये आगे आएगा, ये दोनों एक साथ आगे आएंगे, सिर्फ यहाँ लॉग एक्स बचेगा। देन डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग यू का डेरिवेटिव होता है 1/u डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे अब दो फंक्शन है, सो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डायरेक्ट हम इसका नहीं फाइंड कर सकते डेरिवेटिव, सो ये लिखें, बट हम ये ना ऑलरेडी 2-3 बार ये इसका डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स प्रीवियस 2 क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट आप याद भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये आंसर इसका बहुत बड़ा है। सो डायरेक्ट हम यहाँ, जैसे हम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लॉग एक्स का याद है 1/x, सेम हम इसका भी याद रख लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स होता है एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। देन यहाँ पे ये जो डिवाइड में था वो डिवाइड वाला u इधर आएगा मल्टीप्लाई में, देन ये ऊपर जाएगा डिवाइड में x, यहाँ पे log x, और इसका स्टैंडर्ड जो अभी हमने फाइंड किए थे डेरिवेटिव, डायरेक्ट हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिख लेंगे। देन u रिप्लेस करना है, u हमारा क्या है x ट्रिपल एक्स, सो एक्स टू द पावर एक्स, और यहाँ दोनों में से हमें कॉमन निकालना है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में से कॉमन निकालें। सो यहाँ पे बचेगा 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये बचा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने रिप्लेस किया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से u की वैल्यू हमने रिप्लेस की यहाँ पे। नाउ अभी जो हमने u सॉल्व किया, अब v लेंगे, v क्या है e टू द पावर x टू द पावर x, सो v को सेपरेट सॉल्व करना है। लेट v इज इक्वल्स टू e टू द पावर x टू द पावर x, सेम यहाँ पे भी x टू द पावर x को हम एक टर्म कंसीडर करेंगे, ये टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेके एक्स टू द पावर एक्स आगे आएगा और लॉग ई, बट हमें पता है स्टैंडर्ड वैल्यू लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, सो 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे रीज़न लिखा है लॉग ई की वैल्यू 1। देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वी की 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव अभी जस्ट इसका स्टैंडर्ड मतलब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट हम लिखेंगे एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। देन डिवाइड वाला भी इधर आएगा मल्टीप्लाई में, फिर से v रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, v क्या है हमारा e टू द पावर x टू द पावर x, सो इसकी जगह ये लिखेंगे इंटू ये। सो हमारा यहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, अब यहाँ पे देखो जो इक्वेशन नंबर ये डी यू बाई डी एक्स की जो ये वैल्यू मिली हमें, ये वाली वैल्यू, और डी वी बाई डी एक्स की ये वैल्यू हमें पुट करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारा कौन सा है, ये। सो यहाँ पे हमारी दोनों डी यू और डी वी की वैल्यू पुट करना है। सो अपना क्वेश्चन का आंसर, लास्ट आंसर ऐसा बनेगा। ओके, ये फर्स्ट पूरी ये डी यू बाई डी एक्स की और ये डी वी बाई डी एक्स की, दिस इज़ द लास्ट आंसर। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स सेकेंड का सेकेंड आंसर। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6। लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर tan x प्लस कॉस एक्स टू द पावर कॉट एक्स। सेम जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में इसको u कंसीडर किए, v कंसीडर किए, देन डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स एंड v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सो कंसीडर, अभी जो u हमने क्या कंसीडर किया, ये साइन एक्स टू द पावर tan x, इसको हम पहले सेपरेट सॉल्व करेंगे, एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, देन पावर जो tan x है वो आगे आएगा इंटू लॉग साइन एक्स। सो लॉग यू का डेरिवेटिव होता है 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, टैन एक्स। अब यहाँ दो फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक लॉगरिथमिक। सो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, लॉग साइन का होता है 1/sin,
फिर से साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, टैन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। देन जो डिवाइड में यू था इधर आएगा, मल्टीप्लाई में यू होगा। देन यहाँ जो टैन को हम क्या लिख सकते हैं एक्सपांड करके, साइन डिवाइड बाय कॉस, और ये जो कॉस है इसको ऊपर लिखेंगे डिवाइड में साइन। सो क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन, प्लस ये सेक स्क्वायर को पहले सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, सेक स्क्वायर को पहले और लॉग को बाद में। देन कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। और जो ये हमारा u था, u हमने रिप्लेस किया इक्वेशन नंबर 2 से, u की जगह साइन एक्स टू द पावर टैन एक्स। सो यहाँ पे लिखें सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो हमें यहाँ पे मिला है डी यू बाई डी एक्स, पहला मिल गया आंसर, अब सेकेंड मिलना है डी वी बाई डी एक्स। सो उसके लिए हम v सॉल्व करेंगे। v हमारा क्या है, कॉस एक्स टू द पावर कॉट एक्स। सो हम v सॉल्व करेंगे ना, v इज इक्वल्स टू दिस, सेम स्टेप है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लगाएंगे, पावर आगे आएगा, कॉट आगे आएगा, देन लॉग v का डेरिवेटिव 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल सेम, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1/cos आएगा, फिर से cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। देन डिवाइड वाला भी ये साइड आएगा, मल्टीप्लाई में कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस बाय साइन, और यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो माइनस साइन डिवाइड बाय कॉस। और यहाँ देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, सो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स को पहले और लॉग कॉस एक्स को बाद में। देन कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए दोनों में से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, ये भी माइनस और ये वाला माइनस, माइनस बाहर निकालेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1, और माइनस कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर लॉग कॉस एक्स। और जो ये v है हमारा, v रिप्लेस करेंगे यहाँ से कॉस एक्स टू द पावर कॉट एक्स। सो ये v रिप्लेस किए, ये हमें मिल गया डी वी बाई डी एक्स। अब पुट द वैल्यूज ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब ये जो हमारी डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू और वो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो दिस इज़ अवर लास्ट आंसर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 8th वाला, y इज इक्वल्स टू tan x टू द पावर tan x टू द पावर tan x एट x इज इक्वल्स टू π/4। अब यहाँ पे ये सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। सो ये डिफरेंट में सेम ही है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे एक कंडीशन देखिए कि पूरा सॉल्व करने के बाद x की जगह आपको π/4 पुट करना है, मीन्स 45। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कंसीडर करें लेट u इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एट ए टाइम 3 नहीं सॉल्व कर सकते, तो हम पहले ये अंदर का क्लोज ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन ऊपर वाला सॉल्व करेंगे उसके साथ। सो लेट u वी आर डिनोटिंग tan x टू द पावर tan x। सो क्या हो जाएगा हमारा y, क्या बिकम्स होगा y इज इक्वल्स टू, ये तो हमने u ले लिया तो u के ऊपर tan x, so this y will becomes y is equals to u to the power tan x, equation number 1 suppose। now ये वाला पहले u को हम सेपरेट सॉल्व करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग u और इधर लॉग a, देन पावर आगे आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग u का डेरिवेटिव होता है 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। देन यहाँ पे भी दो फंक्शन आ गए हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लॉग tan का होता है 1/tan, और फिर से tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। देन बोथ tan tan कैंसल, और ये जो डिवाइड वाला u है इधर आएगा मल्टीप्लाई में u, यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस ये सेक स्क्वायर एक्स को पहले लिखेंगे और लॉग बाद में। देन u रिप्लेस करना है इक्वेशन नंबर सपोज यहाँ से u क्या हमारा tan के ऊपर tan x टू द पावर tan x। सो ये हमारा u है, u यहाँ से रिप्लेस करेंगे और दोनों से कॉमन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है सेक स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पे ये जो हमारा कॉमन का टर्म है ये और ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1, और यहाँ पे लॉग tan x। तो दिस इज अवर डी यू बाई डी एक्स। नाउ हियर दिस इज एज इक्वेशन नंबर 3,
नाउ इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमारा 1 इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू यू टू द पावर tan x. सो ये अब इसको सॉल्व करेंगे. u इज इक्वल्स टू tan टू द पावर x, देन टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लगाना है. यहाँ log y इज इक्वल्स टू log u टू द पावर tan x. tan x जो पावर है वो आगे आएगा, tan x इंटू log u. नाउ ईयर अगेन टू फंक्शन, सो प्रोडक्ट रूल लेंगे और ये log y का डेरिवेटिव. सो log y का डेरिवेटिव होता है 1/y इंटू dy बाई डी एक्स, और प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाएंगे इन दोनों में. फर्स्ट फंक्शन है tan x, सेकेंड फंक्शन है log u. सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log u का डेरिवेटिव होता है 1/u, अगेन u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन हमारा है log u और tan x का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. देन ये जो डिवाइड में y है इधर आएगा मल्टीप्लाई में tan x एज इट इज. नाउ u वी हैव टू रिप्लेस. u क्या है हमारा, ये जो हमारा u tan x टू द पावर tan x, सो ये हमारा u है. u भी हम रिप्लेस करेंगे, u रिप्लेस करेंगे tan x टू द पावर tan x, और du बाई डी एक्स हमने जस्ट अभी ये फाइंड किया इक्वेशन नंबर 3 से. du बाई डी एक्स ये जो हमारा पूरा इक्वेशन आंसर है इक्वेशन 3 से, ये हम यहाँ पुट करेंगे du बाई डी एक्स के जाइए क्लोज ब्रैकेट में हम पूरा लिखे. ओके, देन प्लस log u, और log u भी हम इक्वेशन नंबर सपोज इसको 2 दिए हैं, log u के जगह tan x इंटू log tan x. सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है. सो log u के जगह हम ये रिप्लेस करेंगे, तो ये log u की जगह ये, और ये sec स्क्वायर x एज इट इज़, इसको पूरे को मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा. देन y अगेन रिप्लेस करना है. y हमारा जो क्वेश्चन है tan x टू द पावर tan x. तो ये हमारा हो गया है y. यहाँ पे tan x टू द पावर tan x, ये सभी सी क्लोज ब्रैकेट है बट ये मल्टीप्लिकेशन में, सो ये दोनों कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा tan x और sec स्क्वायर x. फिर ये ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग ऑफ tan x, देन यहाँ प्लस है बीच में tan x इंटू लॉग ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x एज इट इज़. फिर अब यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन में हमारा क्या देखा था, एट x इज इक्वल्स टू π/4. सो जहाँ पे x है वहाँ पे हम π/4 लेंगे. सभी जगह जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे π/4 ले लेना है. देन स्टैंडर्ड वैल्यू tan π/4 मीन्स 45 की वैल्यू होती है 1 और sec π/4 की होती है √2. सो जहाँ जहाँ आपका tan π/4 है वहाँ पे 1 पुट करना है, और जहाँ जहाँ sec π/4 है वहाँ पे √2, बट ये स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लेंगे. देन अभी इसको सॉल्व करना है. 1 1 1 मीन्स 1 ही रहेगा. √2 का स्क्वायर होता है 2, ये 1 प्लस log 1 की वैल्यू होती है 0. ये भी याद रखिए कि ऑलवेज log 1 ये होता है 0. ओके, सो log 1 यहाँ होता है 0, सो 1 प्लस 0, देन प्लस 2 इंटू ये भी log, सो यहाँ पे देखो 1 इंटू ये tan 45 की वैल्यू 1 इंटू इसकी वैल्यू ये 1 होती है, log 1 हो जाएगा, और sec π/4 की √2 और उसका होल स्क्वायर. देन √2 का स्क्वायर होता है 2, 1 log 1 की वैल्यू होती है 0, देन यहाँ पे भी log 1 की वैल्यू होती है 0, और 0 से कुछ भी हो तो ये यहाँ की सेकेंड टर्म पूरी 0 हो जाएगी. देन √2 इंटू 1 2, मतलब 0 प्लस 2 आंसर. सो यहाँ पे हमें इसका आंसर 2 मिला. सो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. लास्ट है सेकंड क्वेश्चन का, बड़ा है थोड़ा आंसर. देन यहाँ पर log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है. सो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.3 का. नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. बड़े बड़े आंसर्स हैं. थैंक यू सो मच.